All right, hi everyone, good evening. हाँ हाँ बिल्कुल, of course I will share the lecture and the recording. जो सुबह मैंने आप लोगों के साथ में सरफेस केम का पार्ट डिस्कस किया था, उसका एज वेल एज ये न्यूक्लियर केम का मैं सब साथ में ही भेज दूंगा. ऑल राइट, सो 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं बाकी स्टूडेंट्स के ज्वाइन होने का, एंड देन वी विल स्टार्ट विद दिस न्यूक्लियर केमिस्ट्री बिट एज वेल.
All right. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव जॉइंड इन. राइट, सो न्यूक्लियर केमिस्ट्री आप लोगों को लेट्स से दोनों फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों का पार्ट है. आप लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से भी फिजिक्स में देखा होगा. एंड इनफैक्ट 12th क्लास की फिजिक्स की जो एनसीईआरटी है उसमें न्यूक्लियस करके चैप्टर है. केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में नहीं है. ठीक है, देयर इज नो चैप्टर such as nuclear chemistry in like NCERT in class 12th in chemistry. Physics में है ये 12th physics NCERT में. Now यहाँ पर आप लोग नोटिस करना न्यूक्लियर केमिस्ट्री में मैं आपको ज्यादा डेप्थ में नहीं ले जा रहा हूँ. जो केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, उसका डिस्कशन आप लोगों के साथ में कर रहा हूँ. एंड उसमें सबसे पहले आप लोग नोटिस करोगे रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट. नाउ रेडियो एक्टिविटी वाले पार्ट में आप अंडरस्टैंड करना दैट यू नो all these nuclei of atoms that we have around us, what we find is that some of those nuclei are stable, whereas some of those nuclei are unstable. Now those nuclei which are unstable, they possess what we call as radioactive properties. These unstable nuclei, they tend to become stable. And when I talk stable and unstable, it is in terms of energy only. They tend to become stable by emitting certain particles and in the process releasing energy. So radioactivity, as you can understand, is defined as a process by which the nuclei of certain elements undergo spontaneous, like by itself, disintegration or transformation into another element by ejection of certain particles. Right, तो इसमें spontaneous word important है, and ejection or emission of certain particles would be important है. And you should also understand that it's a property of the nuclei. Now commonly जो heavier elements रहते हैं like bismuth के आगे वाले, उनमें काफी commonly you come across elements और उनके mostly जो isotopes होते हैं radioactive nature के होते हैं. जो lighter elements होते हैं उनमें भी you find elements जिनके radioactive isotopes रहते हैं. For example like C14, deuterium, tritium, these are also lighter elements with radioactive isotopes. Now notice karna that radioactivity as a property is, as I said, is a part or is property of the nucleus. So it really doesn't matter if the radioactive element is isolated or is it present in a compound. Like in fact, the one of the first compounds which was studied to show radioactive properties, accidentally समझ में आया था ये, was a salt of uranium. Right, so in this uranium is combined with like other elements, doesn't matter, it is still going to show radioactive properties. So radioactivity is, it doesn't depend upon these temperature, pressure or nature of chemical combination, right? It's just dependent on the nuclei. Like if that nuclei is part of any combination, like that particular nuclei or that particular molecule is going to be radioactive in nature, right? Now to further stress on this point, let me present this question in front of you that we'll try to answer. All right.
बुकलेट का ही क्वेश्चन है. What according to you will be the answer? Which of the following will have the highest value of radioactivity? D is not the correct answer. You will need to calculate how much of radium is present now. A will be the correct answer. 1 gram of radium will have maximum number of radium atoms or nuclei. बाकी में तो कैसा हो जाएगा? Like 1 ग्राम मास सबका सेम है बट मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जा रहा है तो मोल्स कम होते जाएंगे, नंबर ऑफ रेडियम न्यूक्लियाई कम होते जाएंगे. राइट. सो the way in which we understand radioactivity is from the perspective of the number of atoms, the number of nuclei. ठीक है. All right. Now given this context, let's understand more about radioactive emissions. So when you come across radioactive emissions, alpha, beta, gamma are the common ones, but हम लोग positron emission and K capture भी देखेंगे. So यहाँ पर एक एक करके समझते हैं. कुछ टर्म्स मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. सो व्हेन अ रेडियोएक्टिव एमिशन हैपेंस, जो ओरिजिनल न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग पेरेंट न्यूक्लियाई बोलते हैं, एंड उसके मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर को हम लोग लाइक ऊपर एंड नीचे इन सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट करते हैं. आफ्टर द डीके हैपेंस, राइट, व्हाट हैपेंस आफ्टर द डीके? You have certain radioactive particles and the product nuclei. Product nuclei को हम लोग daughter nuclei term use करते हैं, right? And as part of this, you can say nuclear reaction, we represent these atomic number and mass number and show how they are changing, like how the conversion happens. Overall यहाँ पर atomic number and mass number conserved रहेगा, right? So alpha emission is represented something in this manner, wherein एक unstable nucleus है और उस nucleus में से दो protons and दो neutrons together combined, that is what is called as an alpha particle. Two protons and two neutrons. You can also think of it as a doubly ionized helium nuclei. ये eject हो रहा है, right? You come across beta rays. Beta rays क्या होते हैं? Beta rays are actually electrons, right? बट ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं? न्यूक्लियस से आते हैं. मैं इनकी डिटेल्स में जाऊंगा एक एक करके. मैं जस्ट आप लोगों को एक रिप्रेजेंटेशन पहले समझाना चाह रहा हूँ. ये पेरेंट न्यूक्लियाई है, ये डॉटर न्यूक्लियाई है. एज यू कैन अंडरस्टैंड, जब बीटा रेज का एमिशन हो रहा है तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जा रहा है. क्यों ऐसा हो रहा है हम लोग इसकी डिटेल में जाएंगे. दैट व्हाट हैपेंस इज दैट विद इन द न्यूक्लियस actually a neutron converts into a proton and an electron, and this electron is what is getting emitted, right? The proton stays in the nucleus, जिसकी वजह से you can see that atomic number 1 से बढ़ जाएगा, right? And this is also accompanied with something called as anti-neutrino. Now this is something which is another branch of discussion, I would say, wherein we talk about these elementary particles and उनके anti-particles. But rather than getting into the details of it, just आप इतना ध्यान रख लो कि यहाँ पर जब बीटा रेज का emission होता है तो उसके साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो भी emit होता है. We represent this using as a nu with a bar symbol over it. Now gamma rays के बारे में notice करना. What are gamma rays? Gamma rays are high energy photons, right, or electromagnetic radiations which are emitted
along alpha and beta emissions. ऐसा क्यों होता है? Because जब parent nuclei decay करता है into daughter nuclei and some emission happens, generally ये जो daughter nuclei रहता है ये excited state में रहता है and it returns back to the ground state by emitting certain gamma radiations. So this is something which is a part of a theory called as nuclear shell model. तो जैसे आप लोगों ने atomic structure में पढ़ा था that electrons are present in quantized energy levels, right? वैसे ही inside the nucleus जो ये particles present होते हैं, neutrons, protons, in fact we go into more details of it, that what these protons and neutrons are present in. But the underlying basic is that inside the nucleus these particles are also present in quantized energy levels. So when this radioactive emission happens, parent nuclei से daughter nuclei आता है, तो daughter nuclei actually कई बार excited state में रहता है, right? And when it returns back to the ground state, right, जो energy levels के बीच के difference होते हैं, they correspond to gamma radiations. ठीक है, so यहाँ पर notice करना gamma radiation से there is no change in atomic number or mass number. It is just excited nuclei de-exciting into ground state. Right? तो ये एक basic introduction था towards alpha, beta and gamma emissions. And in emissions की थोड़ी बहुत properties होती हैं जो एक ये tabular form में आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनको भी आप एक एक करके समझना, right? अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स के बारे में कैसा रहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड व्हाट इज अल्फा पार्टिकल. इट इज 2 protons and 2 neutrons. Beta particle is basically an electron with negligible mass. Gamma rays are photons only. They have no charge, they have no rest mass. We use the term something called as rest mass. Then इनका representation like ऐसे अल्फा सुपरस्क्रिप्ट में 4, सबस्क्रिप्ट में 2, बीटा 0 - 1 एंड गामा 0 0, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. Now when these particles are exposed to an electric or magnetic field, what we observe is that alpha particles, because they are positively charged, they get deflected towards the negative electrode. Beta particles, which are electrons only, they are negatively charged, they get deflected towards anode, and gamma rays show no deflection. Now in terms of the speed of these particles, like जब ये radioactive emissions होते हैं, इनमें जो energy release होती है, that energy is actually in form of kinetic energy with associated with these like emitted particles. So एक radioactive nuclei decay हो रहा है, तो decay होने पर we say that energy भी release हो रही है. तो वो energy किस form में manifest होती है? इन particles के kinetic energy के form में. So given that understanding, यहाँ पर आप notice करना अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स में जो स्पीड रहता है अल्फा पार्टिकल्स का relatively कम रहता है as compared to beta, as compared to gamma. Gamma particles are basically speed of light only. These are relatively lesser than that. In terms of kinetic energy, ठीक है, यहाँ पर आप notice करना velocity का जो trend है या speed का जो trend है I should say, अल्फा इज लेस देन बीटा इज लेस देन गामा होता है, बट काइनेटिक एनर्जी का ट्रेंड देखना है जो पॉइंट नंबर 9 है यहाँ पर. अल्फा पार्टिकल्स का विल से दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी हायर एज कंपेयर टू बीटा, एज कंपेयर टू गामा. सो दिस इज समथिंग व्हिच वी एसोसिएट अगेन बिकॉज ऑफ द हायर मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. ठीक है, देन यहाँ पे फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट देखना व्हिच आर अगेन रिलेटेड टू ईच अदर, व्हिच टॉक्स अबाउट द आयोनाइजिंग पावर. व्हाट इज मेंट बाय आयोनाइजिंग पावर? दैट अल्फा पार्टिकल व्हेन इट is emitted, अब इसके पाथ में अगर कोई और एटम्स आ रहे हैं, राइट, तो हाउ मच केपेबल अल्फा पार्टिकल इज इन टर्म्स ऑफ इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स out of those particles, out of those atoms upon collision. So again, being massive, alpha particles are much more likely to ionize any atoms that are coming in its path. It is highly likely to ionize electrons out of them as compared to beta, as compared to gamma. ठीक है, then
this is something which is related to the effect on the zinc sulfide plate, like how much of luminescence is caused by these particles. So alpha का ज़्यादा रहता है as compared to beta as compared to gamma. अच्छा, अब यहाँ पर नोटिस करना ये पेनिट्रेशन पावर और रेंज, ये दोनों आपस में एक तरीके से अगेन रिलेटेड पैरामीटर्स हैं. So alpha particles again, because they are more massive in their nature, so they get more, they undergo more collisions and they can penetrate less as compared to beta particles as compared to gamma particles. Gamma particles are something which can penetrate more, right? So ये जो range बताई है यहाँ पर like 8 to 12 centimeter, if I am correct, I think ये lead sheet के through range बताई गई है. So like if you have a thick lead sheet, it can block alpha particles, maybe even block beta particles, but might not be capable of blocking gamma particles or gamma rays. ठीक है. Then इनका equation कैसे लिखते हैं वो तो अभी just मैंने आप लोगों को समझाया है. ठीक है, ये समझ में आया? ऑलराइट, कुछ डाउट रहेगा तो बीच में पूछ लेना. Now talking about positron emission. So this is also another radioactive emission. So positron होता क्या है? Positron is actually an anti-particle of electron. Right? Anti-particle का concept क्या होता है, कैसा होता है, अगेन उसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहिए. Let it be like that is somewhere not something which we would go into the details of. But what happens during its emission, वो आप जरूर notice करना. So you have a nucleus. Now what happens inside that unstable nucleus? A proton converts into a neutron and a positron. So positron has the same mass as that of electron but opposite charge. And this positron gets emitted, whereas the neutron stays inside the nucleus. So you can see that the atomic number of the nucleus decreases by 1. Now this positron emission is also accompanied by a neutrino emission. जैसे आपने बीटा माइनस यानी कि बीटा डीके का जब पढ़ा था तो उसमें न्यूट्रॉन कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन एंड electron or a beta particle. यहाँ पर a proton gets converted into a neutron and a beta particle. In case of beta decay, anti neutrino emit हो रहा था, यहाँ पर neutrino emit होता है. ठीक है. Then another type of emission which is found is called as K capture. तो ये किस तरीके का K capture है? इसमें यहाँ पर नोटिस करना, the nucleus captures the electron from the K shell of the atom itself. तो इसमें ऐसा नहीं है कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बेसिकली ये न्यूक्लियस ही इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है. सो विद इन द न्यूक्लियस व्हाट इज हैपनिंग, यू कैन सी यहाँ पर नीचे कि प्रोटॉन अपने ही एटम के K शेल से इलेक्ट्रॉन का कैप्चर करता है एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द न्यूट्रॉन. राइट. सो ये एग्जांपल यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया है. ये एक बेरियम का आइसोटोप है व्हिच इज कैप्चरिंग इट्स ओन K शेल का इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टिंग इनटू लाइक सीजियम का आइसोटोप. नाउ इस K कैप्चर के साथ में कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज निकलती हैं. व्हाट आर दीज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज? यहाँ पे नोटिस करना, ये K शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये तो न्यूक्लियस में चला जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी. नाउ इस फर्स्ट शेल में वैकेंसी क्रिएट हो गई. अब हायर शेल से इलेक्ट्रॉन्स इसमें जंप कर सकते हैं एंड दोज डी एक्साइटेशन कैन लीड टू एमिशन ऑफ characteristic X-rays. Characteristic matlab they correspond to these particular energy gaps. They have these particular wavelengths. So these K capture, they are emitted or they are accompanied with the emission of these X-rays. So these are the common radioactive emissions that we come across amongst unstable nuclei. नाउ रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, रेडियो एक्टिव एमिशंस क्या होते हैं, इसका एक बैकग्राउंड आपको मिला है. एंड ऑफ कोर्स आपके दिमाग में एक
सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है कि ये आखिर होता क्यों है, why does it happen. Now in order to explain and understand that why radioactivity happens, there are multiple theories. There are theory after theories. Some theories are more empirical, more basic in nature, whereas some theories are much more detailed and get into the details of nucleus and like understand the model of nucleus. Now, as part of our syllabus, as part of our understanding, we will first discuss this N by P ratio based simple theory which tries to understand nuclear stability. So what we understand as per this theory, before getting into the detail, ये जो N by P ratio का theory है, neutron is to proton ratio का theory है, this is, you can say, more of an empirical theory, more of an experimental theory, more of an observation that we come across. So what we do is we analyze different isotopes of different elements, एंड उन सब आइसोटोप्स का हम न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो टैबुलेट करते हैं एंड उसके अगेंस्ट देखते हैं whether the nucleus is stable or not stable. What I mean by stable is whether it is radioactive or not radioactive. And then what we come across, ठीक है, हम लोग एक ऐसा you can say चार्ट बनाएंगे जिसमें बाय एक्सिस पे न्यूट्रॉन रहेगा एंड एक्स एक्सिस पे प्रोटॉन रहेगा, राइट, एंड डिफरेंट आइसोटोप्स का न्यूट्रॉन प्रोटॉन हम लोग यहाँ पे मार्क कर देंगे. नाउ एज यू कैन सी इस चार्ट के अंदर कुछ मैंने ब्लैक डॉट्स बनाए हैं, कुछ रेड डॉट्स बनाए हैं. तो ब्लैक डॉट्स टिपिकली वो आ रहे होंगे जो कि नॉन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे एंड रेड डॉट्स वो आ रहे होंगे जो कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे. So what we observed by drawing this graph is we found out that there is a zone, there is a stability zone, what we say, that इस zone में अगर n by p ratio है nucleus का, ठीक है, यहाँ पर when we talk about lower atomic number, तो न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो अगर 1 के आसपास है, ठीक है, it is very close to 1, then we see that the nuclei are stable. अगर उससे कम ज्यादा है तो फिर रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज शो करता है न्यूक्लियस, ठीक है. वी ऑल्सो सी दैट जैसे जैसे हम लोग एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाते हैं, लाइक एक्स एक्सिस पे हम लोग आगे जाते जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, तो n by p रेशियो अराउंड 1.6 इज समथिंग व्हिच इज मोर स्टेबल इन नेचर, ठीक है. ऐसा क्यों है उसके बैकग्राउंड में नहीं जा पाएंगे हम लोग, बिकॉज ये थियोरी सिर्फ इतने ही डेटा पॉइंट के ऊपर बेस्ड है, that in case of higher atomic numbers, like this is the kind of n by p ratio around 1.6 which we find is possessed by stable nuclei. अगर इससे ज्यादा होगा या इससे कम होगा तो फिर we see that the nuclei show radioactive characteristics. and इसमें भी हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में गए तो हमें क्या समझ में आया, आप यहाँ पे नोटिस करना, that अगर हम लोग ये स्टेबिलिटी जोन के लेफ्ट हैंड साइड में है, एज इन हमारा n by p रेशियो स्टेबिलिटी जोन से ज्यादा है, राइट, तो व्हाट वी ऑब्जर्व दैट सच न्यूक्लियाई टेंड टू शो बीटा डीके एंड दे शो बीटा डीके सच दैट उनका n by p रेशियो कम हो जाए और वो स्टेबल रीजन में आ जाए, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल C14, राइट, सो आई थिंक यहाँ पर हाँ ये C14 का रिएक्शन भी है. So you can see that C14 में n by p रेशियो 1.33 के पास है, so रेडियोएक्टिव डीके होता है, उसका बीटा डीके होता है, बीटा पार्टिकल निकलता है एंड उससे n by p रेशियो स्टेबल रीजन में आने की कोशिश करता है. तो दिस इज एन ऑब्जर्वेशन विद n by p रेशियो जिनका ज्यादा है, they try to reduce that n by p रेशियो by emitting बीटा पार्टिकल, राइट. यहाँ पर आप नोटिस करना इन दिस रीजन n by p रेशियो 1 से ज्यादा है बट स्टिल स्टेबिलिटी रीजन से कम है, ठीक है. इस रीजन में यहाँ पर व्हाट विल बी द जनरल टेंडेंसी, द जनरल टेंडेंसी ऑफ द, यहाँ पर जनरल टेंडेंसी इधर जाने की थी, यहाँ पर जनरल टेंडेंसी n by p रेशियो बढ़ाने की होगी. सो सच पार्टिकल्स टेंड टू शो अल्फा डीके. सो
Classic example being this uranium ka isotope, in which it tends to do alpha decay so as to increase its N by P ratio. ठीक है. Or many times they actually undergo a combination of alpha and beta decays, a series of alpha and beta decays to get into this stable region. Then ये वाला रीजन आप नोटिस करना जो n by p रेशियो लेस देन 1, मतलब न्यूट्रॉन्स कम है प्रोटॉन से. ठीक है. नेचुरली ऐसे कोई एलिमेंट्स नहीं मिलते हैं. वी डोंट फाइंड एनी आइसोटोप्स नेचुरली अकरिंग जिनके अंदर n by p रेशियो लेस देन 1 होता है. बट इन केस वी डू आर्टिफिशियली get such nuclei, then what we see is that such nuclei, they tend to undergo positron emission or K capture to get into the stable region. Okay, so this is a background towards trying to understand how n by p ratio, neutron to proton ratio, plays a role in the nucleus ka stability. Right, this is one of the many theories which is there, and it is, you can understand a simpler version. There are other theories also which try to go in more details of what nucleus is and what is responsible for the stability of the nucleus, but this is the one जिसके ऊपर हमारा की focus रहेगा. ठीक है, from the perspective of chemistry primarily. All right, अब notice करना. अच्छा, कुछ questions हैं. ठीक है, let me give me 1 quick minute. I'll remove the answers and then maybe you guys can try to answer. ऑल राइट, चलो ये पहले वाले क्वेश्चन का ट्राई करो, क्या आंसर रहेगा बताओ. राइट, सो यहाँ पर आपने एक एक करके ऑब्जर्व किया. इस केस में देखो मास नंबर चेंज नहीं हो रहा है एंड एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ रहा है, तो ये बीटा डीके हो रहा होगा. ठीक है, देन Q से R जब हम जा रहे हैं तो यहाँ पर यू कैन सी दैट एटॉमिक नंबर 2 से चेंज हो रहा है, मास नंबर 4 से चेंज हो रहा है, तो ये अल्फा पार्टिकल के डीके की वजह से हो रहा होगा. एंड देन R से S जब हम जा रहे हैं, ना तो एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है ना मास नंबर चेंज हो रहा है, तो इट इज अ गामा डीके ओनली. राइट, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, 9th वाले में क्या रहेगा? लॉस ऑफ बीटा पार्टिकल इज इक्वल टू करेक्ट, इसका आंसर रहेगा सी. राइट, बिकॉज अभी जस्ट हमने देखा ना यहाँ पर बीटा पार्टिकल में क्या होता है. लॉस ऑफ बीटा पार्टिकल में लाइक अ न्यूट्रॉन is getting converted into a proton and an electron, right? So there is an increase of proton and there is a decrease of neutron. All right, ये 4th वाले का.
राइट से ये ए और जेड रहेगा, इसका एटॉमिक नंबर एंड सॉरी मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। अल्फा पार्टिकल एमिट होने पर ये A-4 और ये Z-2 आ जाएगा। फिर बीटा पार्टिकल का एमिशन हो रहा है तो मास नंबर में तो चेंज नहीं होगा, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा। अगेन मास नंबर में चेंज नहीं होगा, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा। सो A and C1, right, they are the oops, they are the isotopes. All right, ठीक है, इधर आ जाते हैं। The emission of beta particle is correct. The nucleus के अंदर न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अल्फा डीके में what happens to n by p ratio? राइट, अल्फा डीके के बारे में मैंने ये बताया था ना, अभी आपको एग्जांपल दिया था दैट जनरली ये इन एलिमेंट्स के केस में ऑब्जर्व हो रहा है जहां पर, तो इसमें आप ये n by p रेशियो अज्यूम करना कि ऑलरेडी ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि उधर ही अल्फा एमिशंस होते हैं। तो n by p रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 है और अल्फा डीके हो रहा है तो उससे n by p का वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है, बीटा डीके से क्या हो रहा है? हाँ करेक्ट, ड्यू टू बीटा डीके n by p रेशियो डिक्रीज हो रहा है, ये हमने ऑब्जर्व किया था एग्जांपल। ऑलराइट, if n by p ratio is high then the nucleus tends to stabilize by correct बीटा डीके। अभी जस्ट देखा ऊपर हम लोगों ने। then which of the following statements is true about n by p ratio? correct, it increases by alpha emission, it decreases by beta emission, gamma emission से तो कुछ चेंज नहीं होगा इसके अंदर। n by p ratio during positron emission कैसा रहेगा? अभी नोटिस किया हम लोगों ने, जस्ट इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, जस्ट अभी एग्जांपल देखा था ये। then the rays given off by a radioactive element are from correct न्यूक्लियस से आ रही है। ठीक है, इट्स अ न्यूक्लियर प्रॉपर्टी। ऑलराइट, सो एक बेसिक आइडिया आपको लग गया। ठीक है, अब समटाइम्स, ठीक है, दिस इज नॉट अ न्यूक्लियर, दिस इज नॉट अ रेडियो एक्टिविटी का रिएक्शन व्हिच आई हैव रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। ये एक क्वेश्चन है जिसमें लाइक इस तरीके से लिखा हुआ है एक रिएक्शन, तो ये क्या है? दिस इज काइंड ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। ठीक है, इसको रीड कैसे करते हैं? इसको रीड कैसे करते हैं कि ये कोई एक आइसोटोप है जिसपे अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक हो रहा है एंड एज अ रिजल्ट दो न्यूट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई क्या रहेगा वो आप बता सकते हो? ये नोटेशन को रीड करना आना चाहिए।
राइट। सब कुछ नहीं करना है, सिंपली मास नंबर और एटॉमिक नंबर को कंजर्व करना है, राइट। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, बैलेंस एटॉमिक नंबर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, बैलेंस मास नंबर ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे मास नंबर 255 प्लस 4 रहेगा और राइट हैंड साइड पे a प्लस 2 इंटू 1 रहेगा, तो इससे ये आ जाएगा 257। एंड एटॉमिक नंबर ये 101 प्लस 2 लेफ्ट हैंड साइड रहेगा और राइट हैंड साइड पे z प्लस 2 इंटू 0, z आपका सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? ऑलराइट, देन अज्यूमिंग कि अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स ही एमिट हो रहे हैं गोइंग फ्रॉम थोरियम टू बिस्मथ, तो कितने अल्फा एंड कितने बीटा पार्टिकल्स एमिट हो रहे होंगे, क्या आप वो गेस वर्क कर सकते हो? राइट, सो नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स एमिटेड, आप x और y मान लो एंड देन यू अगेन कंजर्व मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। राइट, इस तरीके से करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सब आपको इसमें भी मिलेगा, लाइक बुकलेट में से ही है ये सब थ्योरी एंड थोड़ा क्वेश्चंस। सो आपको बुकलेट रीड जरूर करना है, ऐसा नहीं कि जो मैंने समरी नोट्स यहाँ पे दे दिए उनसे काम चलेगा। ठीक है, डू रीड द बुकलेट ऑल्सो। बुकलेट में थोड़े डिटेल कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, उसमें आप एक एक करके जाओगे, समझना उसमें अच्छे से। ठीक है, अच्छा, अब before we talk about this radioactivity वाला part, let me share some questions with you। ठीक है, सो प्रीवियस ईयर जेई एडवांस के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ में थोड़े से डिस्कस कर लेता हूँ न्यूक्लियर केमिस्ट्री के, ताकि आपको एक सेंस आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें से आ रहे हैं। सो 2020 का तो खैर रेडियो एक्टिविटी के ऊपर था, 2019 का, ओके, ये 2019 का क्वेश्चन है। क्या रहेगा इसका आंसर? नहीं नहीं, मीजोन वीजोन को छोड़ दो, लेट इट बी। मतलब डोंट ट्राई टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट।
वैसे आप लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स में ये वाला चैप्टर पढ़ा होगा ना, लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। हाँ ठीक है, तो फिर वो वाला पार्ट मैं नहीं डिस्कस करूँगा, वो आप लोगों ने उधर पढ़ ही लिया होगा। तो जो केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट है मैं उतना ही डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट रहेगा, बी करेक्ट रहेगा एंड डी करेक्ट रहेगा। सी में इट विल बी एक्चुअली अगेन अ बीटा पार्टिकल ओनली, ठीक है। ऑल राइट, देन लेट्स सी। ये भी आपका जे एडवांस 2016 का क्वेश्चन है। करेक्ट, बी एंड डी। के कैप्चर भी हो सकता है ना, के कैप्चर से भी एन बाय पी रेशियो बढ़ता है, पॉजिट्रॉन एमिशन भी हो सकता है, ठीक है। ऑल राइट, नाउ और भी क्वेश्चंस हैं बट वो इसके ऊपर बेस्ड है, रेडियो एक्टिविटी के ऊपर। सो ये केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड ही अंडरस्टैंडिंग है रेडियो एक्टिविटी की, लाइक इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स दैट इज फॉलोड, राइट। इसमें जस्ट थोड़े बहुत टर्म्स का एक डिफरेंस रह जाता है। तो जैसे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते थे, राइट, तो उसका एनालॉजी यू कैन से इज रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके या फिर एक्टिविटी बोलते हैं उसमें, ठीक है। देन जहां पर हम कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करते थे, वहां पर कॉन्सेंट्रेशन की जगह यहाँ पर नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई लिखा जाता है, ठीक है। हम लोग रेट कांस्टेंट के बारे में जहां पर केमिकल काइनेटिक्स में बात करते थे, उसकी जगह व्हाट वी हैव इज रेडियो एक्टिव कांस्टेंट या फिर डीके कांस्टेंट, राइट। एंड दिस इज हाउ वी राइट द expression of rate of radioactive decay and it is first order, and इसको integrate करने पर you get the expression similar to how you used to get for the first order kinetics, ln n naught by nt is equal to lambda t, where n naught is the initial number of radioactive nuclei, nt is the final number of radioactive nuclei, right। half life का concept वही रहेगा जो पहले था, ln 2 by decay constant, ठीक है। देन यूनिट्स का यहाँ पर एक छोटा सा खेल रहता है, दैट these different units of radioactivity, ऐसा यूनिट तो क्या रहती है disintegration या decay per second, but there are these other units like Becquerel, Rutherford, Curie, इन सब का एक interconversion आपको पता रहना चाहिए, okay। sometimes these units can play a role in question solving, जैसे based on this आप एक दो questions try करो, इसका आंसर निकालो।
ऑलराइट, आंसर आया किसी का? सही है पार्थ तुम्हारा आंसर। ऑलराइट, और किसी का आंसर आ रहा है? करेक्ट, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऐसा है यहाँ पर एक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन, राइट? लैम्डा आपको दिया हुआ है एज इट इज, एंड लाइक मिनट इनवर्स में दिया हुआ है, तो ये डीपीएम की यूनिट के हिसाब से सही है। एंड नंबर ऑफ न्यूक्लिया कितने होंगे वो आपको यहाँ पर मास से निकालना पड़ेगा। 2 ग्राम दिया हुआ है तो उससे मोल्स निकालो, और मोल्स से फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालो, एंड वंस यू सॉल्व दैट यू गेट योर आंसर। ठीक है, बस इतना सही करना था। ऑलराइट, नहीं वो हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट वो सेम ही चीज होगी, मतलब उसको देके इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड किया, इट वाज द सेम थिंग ओनली। ठीक है, ऑलराइट, चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ऑलराइट, तो ये काफी रिलेटिवली इजी आंसर है। यस, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, राइट? लाइक यू कैन थिंक ऑफ इट इन मल्टीपल वेज। 6 आवर्स मतलब 4 हाफ लाइफ चली जाएगी, तो 32/2 की पावर 4, दैट इज 2 ग्राम बचेगा। और यू कुड यूज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा?
करेक्ट, सिंपली बी आंसर रहेगा, हाफ ऑफ द ओरिजिनल है, तो n by 2 आंसर आ जाएगा आपका, सिंपली 6000 years, सेम एज द हाफ लाइफ। ठीक है, ऑलराइट, इस वाले क्वेश्चन का बताओ, क्या आंसर रहेगा? राइट, सो यहाँ पर आफ्टर 2 हाफ लाइफ्स 1/4 रहेगा ना, 1/4 विल बी रिमेनिंग। ठीक है, ऑलराइट, सिंपल था। ऑलराइट, ये बेसिक आपने कर लिए हैं क्वेश्चन, तो मैं 2 क्वेश्चन आपको करा देता हूँ प्रीवियस ईयर जेई के अगेन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। This is again JEE Advanced 2015, देखो उसका क्या आंसर आ रहा है। ऑलराइट, दोनों का बताओ।
ऑलराइट, क्या क्या आंसर आ रहा है? तो पहले वाले का यहाँ पर आप देखोगे यूरेनियम 23892 से राइट कंप्लीट डीके हो रहा है इनटू पीबी 20682 राइट। ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड रहेगा और इससे निकलेगा अल्फा पार्टिकल राइट। तो अल्फा पार्टिकल की वजह से ये प्रेशर आ रहा होगा। ड्यू टू अल्फा पार्टिकल्स। अब कितने अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे आप यहाँ पे? सॉरी 238 है, तो 238 माइनस 632 यानी कि 8 अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे होंगे राइट। कुछ बीटा पार्टिकल्स भी निकलेंगे। कितने बीटा पार्टिकल्स निकलेंगे? 10 और ये 16, 6 बीटा पार्टिकल्स निकल जाएंगे ठीक है। बट द प्रेशर विल बी बिकॉज ऑफ दीज अल्फा पार्टिकल्स राइट। तो ये 1 मोल रहेगा 0 0 एंड अच्छा, इसमें इनफैक्ट आपको रेशियो ऑफ फाइनल टू इनिशियल प्रेशर बोला जा रहा है। अच्छा, 1 मोल ऑफ एयर प्रेजेंट है। ओके, तो इनिशियली 1 मोल ऑफ एयर प्रेजेंट है और उसके बाद में you will have some moles of this thing also present. Anyways, तो ये start रहेगा और ये end रहेगा and 186. So anyways, यहाँ पर initial moles 1 रहेंगे air के right, for gases and final moles will be 1 plus 8 ठीक है। So this implies P final by P initial का ratio will be n final by n initial का ratio will be equal to 9:1। ये रहना चाहिए। हाँ, तो इनिशियल था ना 1 मोल ऑफ एयर, तो इनिशियल 1 मोल ऑफ एयर था, फाइनली भी एयर प्रेजेंट है एंड प्लस बेसिकली ये अल्फा पार्टिकल्स जो आए हैं 8 moles of alpha particles are also now present। ठीक है, तो उसके ऊपर बेस्ड ये हमारा अंडरस्टैंडिंग रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले का 17th वाले का इसका क्या रहेगा आंसर? ठीक, ट्राई कर लो।
ऑलराइट, 3 हाफ लाइफ बोला जा रहा है, तो यहाँ पर आप नोटिस करना इनिशियली राइट t इक्वल टू 0 पर मान लो इसके a मोल्स होंगे, देन t इक्वल टू 3 हाफ लाइफ पर ये कितना हो जाएगा a/8 राइट। a/8 मतलब ये कितना बना होगा, लाइक ये 7 a/8 रहेगा, ये 8 टाइम्स 7 a/8 रहेगा, ये 6 टाइम्स 7 a/8 रहेगा। तो हमें तो अभी अल्फा पार्टिकल के ऊपर फोकस करना है बिकॉज उसी के ऊपर डेटा दिया हुआ है। दैट 8a और इनफैक्ट 8 इंटू 7a/8 इंटू 6.02 into 10 raised to the power of 23 is equal to z into 10 raised to the power of 18 right। और ये a कितना है, a is the moles of uranium right। how many moles of uranium are there to start with, ये आपको क्वेश्चन के डेटा से मिल जाएगा। यूरेनियम का मास दिया हुआ है 68 इंटू 10 की पावर -6 ग्राम्स है, 68 इंटू 10 की पावर -6 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 238 जो उसका एटॉमिक वेट था, तो ये उसके मोल्स हो गए इंटू 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 23 राइट इज इक्वल टू z इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 18। तो यहाँ से z कितना आ जाएगा, ये 18, ये 5 में से एक गया, लेकिन 10 की पावर -1 हो जाएगा, तो 7 इंटू 6.8 इंटू 6 अपॉन 238 राइट। तो ये z कितना आ रहा है, लगभग थोड़ी सी मैथ्स करनी पड़ेगी। 7 इंटू 6.8 इंटू 6 डिवाइड बाय 238 1.2 ठीक है। ऑल राइट, सो 1.2 विल बी योर आंसर। थोड़ा बहुत प्लस माइनस का रेंज होगा, ठीक है। केयरलेस मिस्टेक मत करना, छोटी सी केयरलेस मिस्टेक और फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। इंटीजर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। All right, so I think this is primarily what you need to know from the perspective of radioactivity, ठीक है। Do read the booklet, उसमें थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, बट हाँ मेजर क्रक्स यही है, बाकी थोड़ा बहुत याद करने का है। एंड डोंट गो फॉर दैट पाई मीजॉन वाला थ्योरी एंड ऑल, लेट इट बी। उसके अलावा जो बेसिक्स हैं वो ज़रूर एक बार देख लेना, ठीक है। All right. Any doubts from this, from the booklet, questions you might have solved, surface chemistry, nuclear chemistry? Something you would want to ask and understand? बुकलेट में कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स गड़बड़ है, मुझे ऐसे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट हाँ देयर आर सम क्वेश्चंस। ठीक है, any other doubts you guys have? ठीक है, तो फिर क्लोज करें। रेस्ट मास क्या होता है, रेस्ट मास के बारे में आपको मतलब द थिंग इज दैट लेट्स से फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, लाइक जब ये आप लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़े होंगे E इज इक्वल टू mc² राइट। सो अगर कोई फोटोन है उसका आप एनर्जी hc/λ से कंप्यूट कर रहे हो, तो यू कैन कम अप विद से मास ऑफ फोटोन, बट दिस मास ऑफ फोटोन इज एक्चुअली व्हाट इज इन टर्म्स ऑफ इट्स एनर्जी, ठीक है।
actual में what we say is that photon has no rest mass, in the sense that, like, if we assume that the photon is stationary, then there is no mass associated with it. Checking. हाँ, right. I'll send the recording, I'll send the notes, don't worry. ठीक है, मैं आज ही भेज दूंगा. All right, चलो, thank you guys, take care.